what are the machine cycle required and how this machine cycle is operating. Everything is discussed. Am I right? All the formulas and all are discussed. So today I will be discuss the diagram itself. Before going into the diagram, I first given you the the table of IO oblique M bar and S0 S1. Already I am discussed in a at the time of pin configurations or function of each pins. I already discussed IO oblique M bar and S0 and S1. So just starting with a 000, there is a operations 001, 010, 011. How many combinations of these three? 100, 8, sir. 101, 110, and 111. All of you can see. Just see the top four. Top four is nothing but all our IO number is 0. Is it clear? What, sir? Top four IO number is equal to 0. So what are the meaning of that? Ajay Kumar Mahato. Yes, sir. यार बहुत जल्दी क्लास में आ गया. कितना दिन नहीं आया? सर आए थे तो पिछले क्लास में भी आया था. उसके पहले क्लास में आया था सर. एक दिन सिर्फ एब्सेंट हुआ था. एक दिन तो एब्सेंस था. हमारा तो दिमाग में तो मतलब घुसे हुए है ना, कभी ना कभी तुम एब्सेंस थे. चलो बोलो आयो ऑब्लिक एम्बर इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है? जीरो मतलब क्या है? 1 मतलब क्या है? एनीवन? मैंने बताया था इसको. कोई पिन के ऊपर क्या सर जब मतलब जब बार है तो यानी जब सिग्नल लो रहेगा तब वो ऑपरेशन होगा, और जब हाई रहेगा तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा. तो वो ऑपरेशन मतलब क्या ऑपरेशन सर? सर मेमोरी जब लो रहेगा तो मेमोरी ऑपरेशन मेमोरी होगा. ऑपरेशंस एंड हाई रहेगा तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इनपुट रहेगा. आउटपुट ऑपरेशन. So those are the four are memory operations, and these those are the four is last four is nothing but a IO operation. Is it clear to all? I am repeating once again. First four is nothing but a memory operation. memory operation. Next four is nothing but a input output operations. So these are the four is nothing but a memory operations. So I am mentioning all are memory operations. All are memory. This is nothing but a IO. 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 Okay. This call halt, memory halt. This call memory halt or halt, right? It's clear to you? It's clear to you? सर हॉल्ट मतलब समझ में नहीं आया सर. हॉल्ट मतलब कुछ काम नहीं होता है, प्रोग्राम एंड हो जाता है. This is the status line. This is a status line. This is a status line, right? So first is a halt. Second is memory write.
third is memory read, and fourth is a memory fetch or opcode fetch. Okay. Next, same name, only there is a difference. These are all are for memory and this is all are for IO. So it will be IO halt, it will be IO halt. write, it will be IO read, and it will be Read. IO fetch. Fetch. Is it clear? It's a read, it's a write, it's a halt, and it's a fetch. Sometimes it's also called interrupt acknowledgement. Interrupt acknowledgement, इसका और एक नाम है interrupt acknowledgement. मेमोरी फेच ऑब्लिक क्या दिए हैं और हैं? बोलो मेमोरी फेच का दूसरा नाम क्या है सर? किसका? इसका Opcode fetch. opcode fetch जो तुम लोग कर रहे हो. ओके Opcode fetch. Okay. Next, let's start with a example of first timing diagram. Write down, draw the timing diagram of move A, B. Draw the timing diagram of move A, B. Sir, can you please show once more Huh? that table? ऊपर वाला टेबल. उत्सव तुम्हारा आवाज बहुत धीरे आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो सर, हेलो, am I audible? या ऑडिबल. सर हाँ, बस ये टेबल देखना था सर नीचे. हाँ. ओके सर, फाइन. हो गया सर, हो गया, ठीक, थैंक्स सर. Okay ना? Next, draw the timing diagram of move A, B. Complete. Draw the timing diagram move A, B. क्वेश्चंस यही आएगा. अभी इसके बाद सॉल्यूशंस में क्या करना है, अभी लिखो. सॉल्यूशंस में लिखो, let assuming hex code of move A, B, hex code of move A, B is XY, and the instructions written in 8100H, and the instructions written in 8100H. Therefore 8100H colon XY. Therefore 8100H colon XY. Therefore 8100H colon XY. सर ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसको समझाएंगे. पहले क्या लिखे है, क्यों लिखे है, एक बार बता दीजिए सर. नहीं समझ में आया सर. नहीं समझ में आया. सर देखो, मूव A, B के लिए एक हेक्स कोड होता है, वो किधर से मिलेगा, वो 776777 वो पेज में याद है हेक्स चार्ट जो मैंने दिखाया था. हेक्स Yes, चार्ट sir, वाला. yes. तो वो चार्ट तो हमारा प्रैक्टिकल थ्योरी परीक्षा में, तो थ्योरी एग्जाम में तो नहीं रहेगा ना. थ्योरी एग्जाम में वो किधर से मिलेगा, तो नहीं. नहीं सर. तो इसीलिए मैंने उसका हेक्स कोड पकड़ लिया XY. यस. हमको पता नहीं है इसलिए XY पकड़ लिया. तुमको पता भी रहेगा तो भी XY पकड़ लेना, जरूरत नहीं है तुमको खुद से लिखना.
कि लिखने से कुछ फायदा नहीं है, हम एज ए एग्जामिनर हम सोचेंगे किधर से कॉपी मार के लिखे। तो मूव ए कॉमा बी का हम हेक्स कोड लिखे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस किधर लिखे हैं, 8100 में लिखे। तो 8100 में क्या लिखेंगे, हेक्स कोड ही लिखेंगे, XY लिखा है। इट्स क्लियर? यस सर। XY जो हेक्स कोड है, यू नो द मूव ए कॉमा बी, वो हमको पता नहीं है इसलिए हम पकड़ लिया। इंस्ट्रक्शंस किधर लिखे, 8100 में लिखे, तो 8100H:XY। अभी इसके लिए कितना मशीन साइकिल लगेगा, बोलो। मूव ए कॉमा बी के लिए कितना मशीन साइकिल लगेगा, 1। क्या मशीन साइकिल लगेगा, सर अपकोड फेच, ऑपकोड फेच। क्यों ऑपकोड फेच, क्योंकि 1 बाइट का है। 1 बाइट का है सिर्फ, और एक कारण है, बोला था मैंने, So no extra machine cycle will. रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी हो रहा है, इसीलिए नो एक्स्ट्रा मशीन साइकिल। वो इधर लिख देने से एग्जामिनर सोचेगा ये समझ के लिखा है, तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मगर हम लिखा दे रहे हैं पहला के लिए। तुम लोग लिखोगे, मतलब लिखना चाहते हो, मतलब राइट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू, राइट। तो मैं पहले के लिए हम लिख दे रहे हैं, एज this is a 1 byte instructions, as this is a 1 byte instructions and data copied from one register to another, and the data copied from B register to accumulator, And the data is copied from one register to another or B register to accumulator. So there are no extra machine cycle required. So there are no extra machine cycle required. Only opcode fetch with 4 T state is required. Only opcode fetch with 4 T state is required. Only opcode fetch with 4 T state is required. Opcode fetch with 4 T state is required. It's clear? yes sir. It's clear to all of you? Any doubts इसमें? पिछला दिन मैंने बताया था, सिर्फ उसको एक लिखे और कुछ मतलब जस्ट राइट किए और कुछ नहीं किया। तुम लोग जो बोले उसी को मैंने लिखा है, देखो सबके समझ में आया ना, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आया ना, कि डाउट है किसी को? अंकिता क्लियर? Yes, sir. Okay. So next I'm just drawn the diagram. Before drawn the diagram, मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सेकेंड हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम अभी इसमें कॉपी तुम लोगों को चेक करेंगे। कॉपी चेक करेंगे क्यों? क्योंकि तुम लोग पहला डायग्राम बना रहे हो। थियोरेटिकल क्लास में हम जाकर देखते थे, शुरुआत में गलती होगा तो उसको रेक्टिफाई अभी करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग एग्जाम में भी गलती करके ही आओगे। हम जितना बार भी बोले उसके बाद भी कुछ ना कुछ गलती रहेगा, तो हम इधर से 2-4 का हम कॉपी चेक करेंगे। चेक करने के लिए तुमको कैमरा ऑन करके हमको दिखाना पड़ेगा, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई योर कॉपी, सो दैट वो गलती ना हो। ठीक है, कोशिश करो खुद का कॉपी चेक करने के लिए, तो खुद का बेनिफिट है, क्योंकि तुम्हारा कोई गलती रहेगा तो उसको रेक्टिफाई हो जाएगा। यही चेक करेंगे बोला है, एक जन निकल गया। क्या किसको बाकी मारोगे भाई? हमको नहीं, तुमको मार रहे हो। समझ गया ना क्या बोला? हेलो, yes sir. यस सर। ना दिखाने से तुम लोगों का दिक्कत है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं दिखाना चाहते हो, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, पहले ही बोल दिया। एक जन निकल भी गया है, बोला है इसीलिए। मगर दिखाओगे तो तुम लोगों के लिए अच्छा ही है। कोई गलती रहेगा तो उसको रेक्टिफाई हम बोल देंगे, इस जगह में प्रॉब्लम हो रहा है,
क्योंकि वो प्रॉब्लम ही तुम सीखोगे और बाद में एग्जाम में भी वही प्रॉब्लम वाला ही करोगे, तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, T1, T2, T3, T4, this is signal. Top of the drawing you should be written opcode fetch. It's clear? It's clear? Sir, why T1, T2, T3, T4? There are 4 T state, that's why T1, T2, T3, T4. And this is a signal. What are the signals? I'm drawn, and according to how it will be shown like that, I will be explained over here. It's clear? Can I proceed? Yes, sir. First is clock, CLK. First is clock. Just see, clock first is down. First is down, then it will be straight, then it will be up, then it will be straight. Is it clear to you? अभी इसको पूरा कॉपी करके हर एक जगह में पेस्ट करना है, तो कैसे होगा? फर्स्ट डाउन, देन स्ट्रेट, देन अप, देन स्ट्रेट, Straight. डाउन, स्ट्रेट, अप, Straight, स्ट्रेट, up, डाउन, straight. स्ट्रेट, अप, स्ट्रेट। यही है क्लॉक। माइक्रोप्रोसेसर का क्लॉक ऐसा ही दिखता है, तो उसको ही तुमको डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करना है। तुम सीआरओ भी चेक कर सकते हो, तो क्लॉक ऐसा ही दिखेगा, तो इसीलिए हम लोग को ऐसा ही ड्रॉ करना है। देखो आइडेंटिकल होना चाहिए, T1 में जैसे T2 में, T3 में, T4 में। थोड़ा बहुत इधर उधर होने से ऐसा प्रॉब्लम ना हो। जैसे इसका मेजरमेंट भी एक होना चाहिए, एक ही T1 जितना विड्थ का है, T2 उतना, T3 उतना, T4 सेम विड्थ का होना चाहिए। नेक्स्ट, what are the status of IO/Ember S0 S1 for opcode fetch? What are the status? 0, 1. 0, 1. 0, 1, 1. Am I right? So IO/Ember is 0, sir. IO/Ember is 0. So how to show the 0? From high to low, from high to low, then straight. It's a IO/Ember. It's clear? हम इधर लिख भी दिया, IO/Ember is equal to 0. हाँ बोलो। Sir, हमको repeat it once again. 0, देखो ऑपकोड फेच में क्या बोला? 0, 1, 1, तो IO/Ember क्या है? Yes. 0. 0, तो 0 दिखाने के लिए हाई से लो करके सीधा लास्ट तक। हाई से लो किया मतलब 1 से 0 तक जाएगा सर। है, T4 तक जाएगा ये। T4 तक। T4 के बाद तो कुछ है भी नहीं, हमारा तो T4 तक ही है। नहीं सर, मतलब जैसे हाई टू लो किए ना, हाँ, एकदम लो उसके बाद T4 तक चला जाएगा, ये मतलब स्ट्रेट ही जाएगा। स्ट्रेट ही जाएगा, स्ट्रेट ही जाएगा, क्योंकि हर एक में ही IO/Ember is equal to 0। ओके,
मतलब सर ये आयो एम्बर कर क्या रहा है यहाँ पे सिग्नल को? हैं? सिग्नल को जो आयो एम्बर वहाँ पे जीरो जो टेबल दिखा है उसमें, तो सर शुरू से भी तो हम स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। शुरू से स्टेट ड्रॉ करने से तो ये तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, दिस इज नॉट ए आर्ट, दिस इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो तुमको कैसे पता चलेगा वो 0 ना 1? तो ऊपर से नीचे दिखा रहा है मतलब हाई से लो, लो भी होगा तो लो से लो मतलब तो लो ही होगा ना, इसीलिए हाई से लो ऐसा करके दिखाता है। ओके सर। जब हाई होगा, अभी आ रहे हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा, इसका ठीक उल्टा, उल्टा होगा मतलब अबली तुम्हारा आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हारा माइक्रोफोन में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं बाबली, बाबली का माइक्रोफोन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। बोलो समीर। So क्लियर हाँ। सर, क्लियर। हाँ बाबली बोलो। down to up जाना पड़ेगा then straight. डाउन टू आप जाना पड़ेगा, उसके बाद स्ट्रेट, लाइक S0, S1। देखो इधर से हम ऊपर उठाया, नीचे से ऊपर उठाया, देन स्ट्रेट। अच्छा S0, S1, 1 हम लिख भी दिए हैं, जिसे तुम लोगों को टेक्निकली कोई प्रॉब्लम ना हो। नीचे से ऊपर उठाया, उसके बाद स्ट्रेट। समीर, इट्स क्लियर टू यू? यस सर, क्लियर सर। विक्रम, विक्रम ऑडियो इज नॉट। हाँ विक्रम बोलो। हाँ बोलो विक्रम। सर S0 और S1 का डायग्राम भी उसी के साथ बना देंगे, उसी सीधा में। ये ऊपर उठाया, 1 किया, नीचे से 1 किया, 1 करना मतलब नीचे से ऊपर करना पड़ेगा। देखो नीचे से ऊपर किया, फिर स्ट्रेट कर दिया, क्योंकि अच्छा उसी को सटा के ना सर। हाँ हाँ, S0 और S1 एक ही साथ है। ओके सर। 1 1 ही है, अलग नहीं है। ओके सर। सर मेमोरी अलग रहता है तो अलग अलग होगा तो अलग अलग करना पड़ेगा, दिखाएंगे हम, आएंगे, अलग अलग तो रहेगा ही। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? मेमोरी फेच में ना सर, वही हाँ, कोड फेच। मेमोरी फेच और ऑपकोड फेच एक ही है, ऑब्लिक देकर तो लिखा मैंने, एक ही नाम है। हाँ जिसको सर। मेमोरी फेच बोलता है उसको ऑपकोड फेच बोलता है। समझ में आया हैंडू बॉय? शुभम? हाँ सर आया। आया ना? हाँ सर। अभी याद है हायर ऑर्डर एड्रेस बस? क्या नाम था हायर ऑर्डर एड्रेस बस? याद नहीं है? 8 to A15, 8 to 815, A15, 8 to A15। बास कैसे दिखाना है? ऐसे, जस्ट लाइक ए बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर हाई लो सब कुछ रहेगा, जो रहेगा रहेगा। T3 तक जाएगा, T3 में एंड हो जाएगा। T3 में एंड हो जाएगा। सर। हाँ? सर बोलेंगे बाद में। इसके बाद एक ब्लॉक और रहेगा, उसको नाम है अनस्पेसिफाइड। इसके अंदर लिखो तुम लोग, पूरा लिखो तुम लोग, अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। और इसका नाम है, तुम लोग पूरा लिखना, हायर ऑर्डर एड्रेस बस, हायर ऑर्डर एड्रेस बस, हायर ऑर्डर एड्रेस बस। सर सिग्नल में लिखना है ना, A8 to A15 उसमें। 8 to A15, ये जो बास हुआ है, ये इतना दूर तक काम करता है एज ए हायर ऑर्डर एड्रेस बस। इसके लिए इसके ऊपर हम लिख दिया हायर ऑर्डर एड्रेस बस।
और इसके अंदर लिख देना अनस्पेसिफाइड। ओके, अनस्पेसिफाइड। एक्चुअली ये डायग्राम जो है हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर का जब कोई भी सिग्नल चलाओगे तो इंटरनली ऐसा होता है डायग्राम, उसी को हम लोग अभी कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दिखते हैं ऐसे ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अनस्पेसिफाइड बोले ना सर। अनस्पेसिफाइड क्यों है, 3 तक क्यों है, हम बाद में आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट AD02 AD7 AD02 AD7 अच्छा, AD02 AD7 का क्या फंक्शन है, कोई बोल सकते हो? सर वो जो दोनों साथ वाला था शायद वो था। एड्रेस डेटा बस। सर एड्रेस हाँ, और डेटा दोनों साथ एड्रेस एज वेल एज डेटा बस। मतलब it will be act sometime as a address bus, it will be act sometime as a data bus। यस सर। ठीक है, अच्छा ये कितना दूर तक जाएगा, T1 तक जाएगा, T1 तक जाएगा, उसके बाद डाउन, उसके बाद खत्म। T1 के बाद खत्म। नेक्स्ट डॉटेड, देन मिडिल ऑफ द T2 से स्टार्ट होगा, मिडिल ऑफ द T2 से। फिर T3 तक जाएगा, उसके बाद डॉटेड। ओके, इसका नाम है, पूरा लिखना तुम लोग, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस मतलब A02 A7, इसको बोलता है डेटा बस। इसका नाम है डेटा बस। नेक्स्ट इज ALE सिग्नल। Just in T1 it is high, then state just T1 it's high। जब तक लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के हिसाब से काम करेगा तब तक A हाई रहेगा। जब तक लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के हिसाब से काम करेगा तब तक ALE सिग्नल हाई रहेगा। अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं रीड बार। स्टेट जाएगा जब डेटा बस है, ठीक डेटा बस का नीचे ये लो रहेगा, इसीलिए हमको ये एरो दिखाना पड़ेगा। ठीक नीचे से ऊपर तक एरो जाएगा। सर ALE का फिर से बताइए तो। ALE सिर्फ T1 में हाई होगा, T1 में लो होके एकदम स्ट्रेट चला जाएगा। T1 में हाई होगा, T1 में लो होके स्ट्रेट चला जाएगा। एंड रीड बार डेटा बस का नीचे नीचे लो होगा, एरो देकर तुमको दिखाना पड़ेगा। क्लियर? अभी समझाएंगे हम। सर एक बार फिर से। ALE सिग्नल है ना, हम समझाएंगे अभी। तुम पहले ड्राइंग हुआ कि नहीं देख लो। फिर से हम बोल रहे हैं ALE सिग्नल हाई होगा फर्स्ट T1 तक, उसके बाद लो होकर स्ट्रेट चला जाएगा। RD बार स्ट्रेट जाएगा, डेटा बस के नीचे लो रहेगा, डेटा बस के नीचे लो रहेगा, और यही एरो बस से कनेक्टेड होगा। और रीड बार सर इसमें T2 और T3 तक सर 0 रहेगा सर उसमें, हैं? तो डाउन होके नीचे आएगा। समझ में नहीं आया, एक बार बोलो क्वेश्चंस। सर रीड बार को रिपीट कीजिए सर।
रीड बार स्ट्रेट चलता रहेगा, डेटा बस का नीचे नीचे सिर्फ लो रहेगा, डेटा बस का नीचे लो हुआ फिर हाई हो गया, ठीक। डेटा बस का नीचे ये लो रहेगा, डेटा बस के नीचे लो रहेगा। दिखाने के लिए ऐसे एरो करके भी दिखाना पड़ेगा, इसीलिए परफेक्ट हुआ जो हम इसके नीचे ही किया है। क्लियर? क्लियर? यस सर। अभी तुम लोग कोई बोलो एएलई का फंक्शंस क्या है, मैंने बोला था। कॉपी देख के भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद भूल गया होगा, शुरुआत में लिखा था पिन कॉन्फ़िगरेशन लिखाने के टाइम मैंने बोला था। सर लोअर ऑर्डर को शो करता है ना मैं भी डेफिनेशंस बोलो, एकदम डेफिनेशंस मैंने बोला था, याद है? वह लिखा हुआ रहेगा तो बोल पाओगे। सर एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस लैच इनेबल पता है, it controls the work of AD0 to AD7. या So when AL is higher than AD0 to AD7 act as a address bus. Address bus. very good. When ALE signal is high, then AD0 to AD7 act as a address bus. Rest of the time maybe act as a data bus. क्योंकि देखो पूरा टाइम डेटा बस के हिसाब से काम नहीं कर रहे, इस टाइम तक डेटा बस के हिसाब से काम कर रहे, बाकी इस टाइम एंड इस टाइम में नहीं काम कर रहे। इज इट क्लियर? इसीलिए जब तक एएलई सिग्नल हाई रहेगा तब तक AD0 टू AD7 सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना सर। मैम बोलो। AD0 to AD7 will work as address bus or data bus according to situation ना सर। ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो ठीक है, सिचुएशंस के मतलब समझ में नहीं आया। हर एक मशीन साइकिल में ये फिक्स्ड है, तुम्हारा ये T1 स्टेट में ही लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के हिसाब से काम करेगा, उसके बाद डेटा बस के हिसाब से काम करेगा। सिचुएशंस तुम जो बोल रहे हो प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ और सही बोल रहे हो, मगर इसमें ना क्या है कंफर्म है जो तुम्हारा इसी टाइम में तुम्हारा लोअर ऑर्डर एड्रेस बस हिसाब काम करेगा, इसी टाइम में तुम्हारा डेटा बस के हिसाब से काम करेगा, दूसरे टाइम में नहीं करेगा, हर एक में ऐसा ही करेगा। फर्स्ट T1 T स्टेट में ये एड्रेस बस के हिसाब से काम करेगा, फर्स्ट ये इसमें देखो T2 हाफ से T3 तक डेटा बस के हिसाब से काम करेगा। एएलई सिग्नल में और एक डेफिनेशंस लिखना चाहिए था, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा उस टाइम में, इसलिए नहीं लिखाया था। इन T1 एएलई सिग्नल अगर लो होगा, हाँ, एएलई सिग्नल अगर लो होगा तो उस केस में डेटा बस एज ए डेटा बस की तरह वर्क करेगा ना। एएलई सिग्नल अब लो होगा तो डेटा बस के हिसाब से काम हाँ, कर तो सकता है, काम कर सकता है। AD0 to AD7 जो होगा वो डेटा बस की तरह वर्क करेगा ना। ना और जब हाई होगा तो उस केस में एड्रेस बस होगा। हाई होने से कंफर्म एड्रेस बस है, लो वाला हाँ, लो होने से लो वाला में सर डेटाबेस होगा ना। डेटाबेस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो लो जितना टाइम में है उतना टाइम में पूरा डेटाबेस नहीं है। सर आप लिखाए हैं सर ये चीज। क्या बोला? जब लो होगा तब डेटाबेस के हिसाब से काम करेगा, ऐसा लिखा है? नहीं सर, हाँ, मे भी लिखा है। मे भी बात रहेगा ही रहेगा, मे भी 100% रहेगा। मे भी लिखा है तो सर। हाँ, मे भी मतलब क्या है? मतलब कुछ देर तक करेगा, पूरा नहीं करेगा, इसलिए मे भी। तुम फिर से जो मैंने वीडियो तुम क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाया था देखना, मे भी बात हम जरूर बोले थे, 100% बोलेंगे। हाँ सर बोले थे। मे भी बात क्यों है? जब पूरा डेटाबेस के हिसाब से नहीं काम करता है, समटाइम इट विल बी एक्सेस। ओके सर, माय मिस्टेक। नो इशू। उसके बाद क्या है देखो, ये रीड बार कब तक लो है? जब तक डेटाबेस के हिसाब से काम करेगा। मतलब रीड बार लो होना डेटाबेस के लिए जरूरी है, डेटाबेस के हिसाब से काम करेगा जब रीड बार लो होगा। इज इट क्लियर? एएलई सिग्नल जैसे डेटा एड्रेस बस के लिए है, ऐसा रीड बार ऐसा डेटाबेस के लिए है। देखो जितना देर तक लो होगा उतना देर तक डेटाबेस के हिसाब से काम करेगा। देखो बार मतलब एक्टिव इन लो, तो लो होगा तब डेटाबेस के हिसाब से काम करेगा। ओके।
Is it clear? Is it clear? यस सर। पांडे तुम्हारा बाइक है? हाँ है सर। वेरी गुड। पांडे तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाला है। एक गियर से दूसरा गियर चेंज करते हो तो कैसे करते हो? हमारा क्वेश्चन से दूसरा टाइप का है ना। हम इस मतलब इंडिया इंडिया नहीं, वर्ल्ड का नहीं है, दूसरा वर्ल्ड का है। क्लच लेकर सर। क्लच लेकर एक्सीलेटर, एक्सीलेटर दबा के कम नहीं सर, कम नहीं सर, एक्सीलेटर छोड़ के एक्सीलेटर कम करना पड़ता है। एकदम जीरो कर देना पड़ेगा और क्लास दबाना पड़ेगा। सर। सर हम बाइक चलाता है क्लास 6 से, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हमारा भी है। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्लास दबाओ, एक्सीलेटर छोड़ो, देन गियर चेंज करो। एम आई राइट? यस सर। एक गियर से दूसरा गियर जाने में कुछ टाइम लगता है? मिनी सेकंड सर। टाइम तो लगेगा। हाँ। सिमिलरली एड्रेस बस से डेटा बस जाने के टाइम तो लगेगा सर। हाँ सर। इस टाइम buses are called tri-state conditions. इस टाइम buses are called tri-state condition. Tri-state condition. Tri-state condition. एक गियर से दूसरा गियर चेंज, जैसे एड्रेस बस से डेटा बस चेंज। buses are tri-state condition मतलब buses कुछ काम नहीं करता है, फ्रीज हो जाता है, फ्रीज। Similarly इधर over here also इसका भी कोई फंक्शंस नहीं है, डॉटेड लाइन है इसलिए। buses are tri-state. Sir, TRY is TRY, tri-state. okay. Tri-state. Okay. Next. किसको पूछे? राज। हम नेम नहीं बोल रहे क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस है। राज, राज म्यूट से अनम्यूट से म्यूट कर दिया। जय राज बोला। राज फिर से अनम्यूट करो खुद को। राज टाइटल किसका है? मेरा ही है सर। Yeah. What is your name? समीर कुमार रजवार। समीर कुमार रजवार। कैसे बोला? मुंह से सर। मुंह से तो बोला। इसके अंदर क्या क्या हुआ हम बोले एक बार, क्या क्या किया तुमने? तुम मिला लेना जो ऐसा ही किया है कि नहीं। First, you listen very carefully whatever sir asking the questions. Am I right? This is your first step. Yes sir. Second, you after listen you convert in your mother language, means in Hindi. Sir asking my name. Yes. Bengali sir, Bengali. Whatever it is, but you are converting into the machine level, means your language means machine level language, right? Then you are given the executions. So first part is called fetching. First part is called fetching. Fetching means listening. Decoding means you are converting the language to your own language or machine level language. It's called decoding. It's called decoding. And the third one, it is executions. So fetching, decoding, and execution, these are the three parameters for every instructions. One is a fetching, another is a decoding, another is executions. Fetching means it is stored into the instructions registers. Decoding means it's convert into the machine level language. And third is executions. Fetching and decoding total means is called instruction cycle. One is called instruction cycle, another is called execution cycle. And these three parts, T1, T2, T3 is called instruction cycle. T1, T2, T3 is called instruction cycle. And T4 is called execution cycle. So that's why just see to execute जब कर रहे हैं तब एक्चुअली ब्रेन का कुछ काम नहीं है, तुम्हारा मुंह का काज होता है। ब्रेन का काम खत्म हो गया, मुंह को डायरेक्शन दे दिया जो तुम्हारा नाम बोलने के लिए, तब एग्जीक्यूशन होता है। सो इस पार्ट में एक्चुअली एग्जीक्यूशन होता है, इसीलिए ये पार्ट अनस्पेसिफाइड रहता है। रेस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी एक्ट एज अ डेटा बस, दैट्स व्हाई इट्स द रेस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी एक्ट एज अ हायर ऑर्डर एड्रेस बस। इट्स क्लियर?
It's clear to all? Yes, sir. सर Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। First is fetching. Every instruction have a 3 state. मैंने समीर को जब पूछा what is your name, then Samir is just first listen. Then Samir it's convert it in own language. First जो listen किया है इसको हम लोग बोलते हैं fetching. Then Samir is converting it in your own language. मैंने समीर का language maybe Hindi, maybe for me it's Bengali, for you maybe you know Uriya, maybe you know Japanese, you know Spanish, whatever it is. So you convert in your mother language, means you convert in your syllable language, जिसमें तुमको समझ में आए. Then it will be execution. So first fetching, then decoding, then executions. Decoding means machine level language में convert करना. So ये तीनों पार्ट सबको सब इंस्ट्रक्शंस में रहता है. फेचिंग एंड डिकोडिंग इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल. इंस्ट्रक्शन साइकिल दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल. ये इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है T1, T2, T3 मिला के इंस्ट्रक्शन साइकिल. एंड द लास्ट ब्लॉक इज एग्जीक्यूशन साइकिल. सो एग्जीक्यूशन साइकिल इज नथिंग बट देयर इज अ नो फंक्शन ऑफ ब्रेन. तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, तुमको ब्रेन बोल दिया तुमको क्या करना है, अभी तुम करते जा रहे हो. हमारा ब्रेन बोला जे अंकिता को अभी मारो, ठीक है, तो हमको बोल दिया ब्रेन अभी हम थमेंगे नहीं जब तक ब्रेन हमको नहीं बोल रहे, राइट. तो हम मारते ही जाएंगे तुमको एकदम डांटते ही जाएंगे. सो दिस इज नथिंग बट एग्जीक्यूशन साइकिल इज अ वन ब्लॉक एग्जीक्यूशन साइकिल एंड दिस 3 पार्ट इज अ फेचिंग. So execution cycle में basis का कोई functions नहीं रहता है. 8 to 15 that's why it is called unspecified. And over here 8 to 15 is nothing but a higher order address bus. सब समझने के बाद हम ये बोलेंगे ये डायग्राम को अच्छी तरह से देख लो. ये डायग्राम 10 बार करोगे तो तुम्हारा याद हो जाएगा. ये डायग्राम कर पाओगे तो सभी मशीन साइकिल का डायग्राम हो जाएगा. डोंट वरी. ये डायग्राम से तुम्हारा दिमाग के अंदर घुसा लो तो सारा का सारा टाइमिंग डायग्राम कंप्लीट हो पाएगा. Is it clear to you? So first 3 part T1, T2 and 3 are called fetching, and the last one T4 is called execution cycle. Then sir decoding जो machine language convert करने में टाइम लगता है वो इसमें नहीं आता है सर. हाँ बोलो. Sir, first 3 part जो बोले ना T1, T2 and 3 are called fetching, and the last one Decoding, is called fetching and execution decoding. cycle. हाँ. Yes. Decoding sir उसी में आता है ना सर. हाँ सब डिकोडिंग इसी के अंदर आ जाएगा. इसके बाद एक्सिक्यूशन. Fetching and decoding and execution. There is 3 part. One is called fetching, one is called decoding, another is called execution. Fetching, decoding and executions. सर decoding का रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो पूछ रहे हैं. ना दो मिला के इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलता है. ऐसे करके पता नहीं चलेगा तुमको. दो मिला के इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ मे बी T1/2 consist of T1, T2, T3. 3 block is required instruction cycle. T1, T2, T3. T4 is completely depend upon for the execution cycle. Okay. Can I proceed for the next? राइट बार में क्या होगा सर? हाँ बोलो. और राइट बार में? राइट बार सर राइट बार में भी अगर सिग्नल अगर देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? राइट बार अभी कुछ नहीं होगा. राइट बार पूरा स्ट्रेट जाएगा. देखने का जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं दिखाया. जो चेंजेस ही नहीं है उसको दिखा के क्या फायदा. राइट बार आएगा जब मेमोरी राइट करेंगे. आएंगे धीरे धीरे आएंगे. डोंट वरी. इट्स क्लियर टू यू. सो कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? यस सर. ये डायग्राम कोई दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो. तो इसमें
कुछ गलती है तो हम बोल देंगे। कैमरा ऑन करके पीछे वाला कैमरा ऑन करो तो कॉपी दिखाओ तो हम देख पाएंगे। समीर वेट, समीर आयो एम बार एंड S0S1 तुम अलग अलग कर दिए हो, हम एक साथ किए, जो कॉम्पैक्ट होगा तो जगह थोड़ा कम लगेगा, देखने भी अच्छा लगता है। हम जानबूझ के अलग किए, क्यों जानबूझ के अलग किया? एक साथ भी कर दोनों एक ही सकते साथ कर दे सर। एक साथ करने से अच्छा लगता है देखने से। ओके समीर तुम जो एरो दिए हो, देखो हमारा जो एरो दिया है इधर, तुम एरो लगाए हो इधर, दिख रहे हो क्या बोला? हमारा कॉपी में देखो हम एरो किधर यस लगाया। सर, यस। जो रीड बार से एरो गया ना, एकदम शुरुआत में जाएगा, एकदम शेष में खत्म में जाएगा। कंप्लीट। समीर और एक बार दिखाओ, और कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं देखते हैं। समीर तुमको बोल रहे हैं। ओके सर। ठीक, एग्जैक्टली। रीड बार देखो 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 देखो, तुम कुछ गैप छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। शुरुआत से इधर से कनेक्ट होना चाहिए, तुम इधर से शुरू कर रहे हो। रीड बार एकदम लास्ट लाइन T1 से कनेक्ट करो। हाँ, सिमिलरली S0S1 भी, सिमिलरली समीर S0S1। और एक बार दिखाओ। ओके, हम और चेक नहीं करेंगे अभी से, तुम्हारा जो गलती था मैंने बोल दिया, अभी से तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर, आई विल ड्रॉ अनदर टेबल। पहला चीज है AD0 to AD7, जो एरो का मतलब ये है अंकिता का मैं ये भी ले यहाँ लाइन में, ठीक है? अंकिता तुम्हारा वाला देख रहा हूँ। यस सर। अंकिता थोड़ा थोड़ा हैंड को सही रखो। पहले है AD0 to AD7। AD0 to AD7 में देखो तुम जो किए हो, ये जो शुरुआत किया मैंने इधर से किया, तुम बाहर से शुरुआत किए हो, ऐसा नहीं चलेगा। ओके सर। सर इतना माइनर चीज भी दिखता है सर। हाँ एकदम। राइट बार अंकिता ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, हम ऐसा ही ड्रॉ किए हैं, वो बोले थे इसीलिए। अब पोर्ट फेच में राइट बार का कोई जरूरत नहीं है। अंकिता थोड़ा गैप दो, आयो ऑब्लिक एम बार एंड S0S1। अंकिता समझ में ही नहीं आ रहा है हमारा कौन सा क्या है, थोड़ा इसका गैप देके देके करो तो सुविधा होगा। क्लॉक किधर लिखे हो और शुरू किधर किए हो, क्लॉक जिधर लिखे हो उधर से शुरू करना पड़ेगा, क्लॉक को थोड़ा राइट शिफ्ट करना चाहिए था। ओके सर। मतलब क्लॉक लिखने वाला और कुछ नहीं। इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट किसका देखें? बाबली का अभी लिए हैं। बाबली तुम्हारा मतलब खूब हेजी आ रहा है। बाबली का सेम गलती है एज पर समीर, थोड़ा एरो और लेफ्ट शिफ्ट होगा जो रीड बार से गया है। पहला जो एरो था थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट होगा, बहुत ही थोड़ा है मगर होगा। हायर एड्रेस बस हम ऊपर में लिखने बोला, तुम अंदर लिख दियो हो। अच्छा थोड़ा और दूर से दिखाओ, थोड़ा और दूर से दिखाओ, नाम क्या क्या लिखे हो? रीड बार, इट्स ओके। रेस्ट ऑल आर फाइन, रेस्ट ऑल आर फाइन, नो इश्यूज। ओके सर। आशीष कुमार, Yes, sir. आशीष तुम्हारा पिक्चर के ऊपर दिखाओ, पिक्चर के ऊपर दिखाओ। हाँ आशीष,
आशीष एएलई सिग्नल किधर में डाउन किए हो? तो T1 में भी डाउन करना चाहिए था, तुम T2 में चला गया है। यस सर। तो उसको उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा आशीष। ओके सर। और थोड़ा नीचे दिखाओ, और थोड़ा नीचे दिखाओ आशीष। हम तुमको बोल दिया हो, तुम ठीक कर लोगे। और दिखाओ। हायर ऑर्डर एड्रेस बस ऊपर में लिखना, नॉट HO क्या लिखे हो, हायर ऑर्डर एड्रेस बस HOAB नॉट लिखने का जरूरत है, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा हायर ऑर्डर एड्रेस बस। पहले सोचो तो सर तो नहीं देखेगा, कुछ भी लिख दे। क्या आशीष? तो बीच में लिखे हुए हाई ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक है, चलो। अभी हम देख रहे हैं मंजिता को, मंजिता का कॉपी देख रहे हैं। मंजिता सीधा करके पकड़ो। मंजिता IOM बार S0 S1 किधर लिखे हुआ है? तुम्हारा सिग्नल किधर है, क्लॉक भी किधर है? जिधर से स्टार्ट कर रहे हो उसके जगह में समझना चाहिए कि वो क्लॉक है। CL के लिखना पड़ेगा ठीक, जिधर से सिग्नल शुरू हुआ उधर से। जैसे IOM बार, जिधर से IOM बार शुरू हो रहा है उधर से लिखना पड़ेगा, जैसे समझ में आए जो हाँ ये IOM बार है। और LOAB मत लिखो, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस लिखो। यस सर। और राइट बार लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, डन। नेक्स्ट इज Bikram. I'm checking the Bikram's copy. ओके, ठीक है, दे सकते हो, डॉटेड दिए हैं। ओके, इट्स ओके। सबसे अच्छा चीज लगा जो मैंने सारा का सारा कॉपी देखा, क्लॉक सब बहुत अच्छा किए हो। क्लॉक 80% स्टूडेंट क्लॉक ही गलत करते हैं। पहला है T3 में क्लॉक थोड़ा आगे से शुरू करना चाहिए था, पहले ही डाउन करना पड़ेगा, तुम थोड़ा बाद से शुरू किए हो। पांडे, शुभम तुम्हारा ही देख रहे। सर रफली बनाए थे, हमको नहीं पता था सर, देखिएगा। देखिएगा, मैं तो पहले शुरुआत में बोला। इससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ ना, तुम्हारा चेक हो गया तो तुम्हारा अच्छा ही है। हाँ सर। ये जो एरो दिए हो रीड बार से, वो थोड़ा यस इधर सर। स्ट्रेट लाइन में दो। डॉटेड देखिए, अच्छा पूरा डॉटेड भी दे सकते हो मगर अच्छा नहीं लग रहा है। डॉट, हाँ एरो दे दो ऊपर में, बस हो गया, बाकी सब सही है। ठीक है, और किसी का है तो दिखा सकते हो, अदरवाइज आई विल बी गोइंग टू द प्रीवियस। और कोई है? ठीक है, बहुत जन का देखा है, डोंट वरी, लगभग ठीक हो रहा है। और जो जो नहीं दिखाया उसको भी समझ में पता चल गया जो सर क्या बोल रहे हैं, किधर ठीक करना है क्या नहीं करना है, इससे उसका भी एक एक्सपीरियंस बन गया है। चलो, ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ मूव A, M, मूव A, M। सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे, बोलो।
बोलो। सर सबसे पहले हेक्सा कोड एज्यूम करेंगे XY। हेक्स कोड सर XY। XY राइट, देन क्या लिखोगे? बोलो एकदम एग्जैक्टली वही बोलो जो लिखोगे। पिछला वाला देख के बोलो, एक ही तो होगा। सेम होगा सर। सेम होगा, बोलो। Sir, थोड़ा let बहुत us चेंजेस। assume लेट अस अज्यूम hex code of move A, M is is XY XY. नेक्स्ट। and the instruction written in हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो। सर कोई भी मेमोरी लोकेशन। हाँ ले लो, 8100 जो लिए थे उसी को ले। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। सॉरी 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 सॉरी, डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। 3 चीज लिखना है इसमें। 8100 में XY डेटा, तो फिर डेटा है XY। 8100 is the address. 8100 is address, XY is data. So here you should be write 81, here you should be write 00, here you should be write XY. I'm repeat once again. कैसे सर? 8100 is the address, XY is data. 8100 address के अंदर कौन सा higher? 81 is a higher, 00 is a 81 lower. is a higher. तो 81 Lower. हायर में लिखा है, लोअर ऑर्डर एड्रेस में 00 लिखे है, और डेटा क्या है XY, तो XY मैंने इधर लिख दिया। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. 8100 is the address, XY is the data. So 8100 के अंदर हायर ऑर्डर कौन सा है? 81 इधर बिठाया, 00 लोअर ऑर्डर, तो 00 इधर बिठाया, डेटा XY, तो XY इधर बिठाया। हाँ बोलो। Is it clear to you, all of you? Can I proceed? Yes, sir. Okay. हाँ अभी बोलो क्या बोल रहा था। And the instruction is written in 8100. ये लाइन तुम लोग लिख लो, ये तो एक ही होगा, कोई अलग नहीं। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा वो हमको समझना सुनना है। सर यहाँ पे एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगेगा। लगेगा तो क्योंकि लिखना, क्या लिखोगे? वो तो लगेगा, सब तो पता है। क्या लिखोगे? देखो ऐसा कोई मैंडेटरी, दिस इज नॉट ए लैंग्वेज क्लास, तुम कुछ भी लिख सकते हो, मगर जो समझाना चाहते हो समझा, मतलब समझा पाओगे, यही बहुत है। बोलो अंकिता, बोलो। बोल रहा था फिर लॉक क्यों हो गया? सर डाटा कॉपीड फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। नो नो नो, पहले से शुरू से बोलो। इट्स ए 1 byte इंस्ट्रक्शन। अच्छा, दिस इज 1 byte instructions instruction and the data copied from register to memory. So extra machine cycle are required. Registered to memory. No, sir. Memory to register. Memory to register. The data copied from memory to register. Memory to register. And So, opcode fetch. So and extra machine cycle is required. So extra machine cycle is required. That is memory read. MR. That is memory read. Therefore, machine cycle required to execute the above instructions. Therefore, machine cycle required to execute the above instruction is opcode fetch plus memory read. Opcode fetch plus memory read. Okay.
Okay. Let us also assuming the content of HL register pair. Content of HL register pair is 85008. Let us also assuming Let us also assuming content of HL register pair is 85008. क्यों बोलो तो इसको पकड़े? बोलो. Why HL? Why not D? Why not BC? हम क्लू दिया. क्योंकि एम मेमोरी लोकेशन The एचएल के move लिए यूज AM करते हैं। से सिर्फ HL रजिस्टर पेयर में ही यूज होता है. तो M का कंटेंट मतलब the particular memory locations का कंटेंट which is nothing but a located by HL register pair. HL register में जो रहेगा उसी memory locations का कंटेंट कोई M का कंटेंट बोलेंगे, राइट? यस सर। तो उसी मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट को हमको बोलना है, उसी मेमोरी लोकेशंस के कंटेंट को हमको बोलना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसका हमको वैल्यू हम पकड़ लिया 85008. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? It's clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's check. So therefore 81008:xy. Next, you should be draw the diagram of T1, T2, T3, T4, again T1, T2, and T3. This is opcode fetch. This is memory read. And this one is nothing but a signal. Okay. कंप्लीट? ये समझने का कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को? एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़े. टाइम चला जा रहा है, जल्दी बताओ. 1 घंटा हो गया. 10 डायग्राम आज टारगेट था हमारा. एक ही डायग्राम में टाइम खत्म. हैं? समीर क्या बोल रहे हो? रात हो जाएगा सर। एक्चुअली क्लास में होने से हम 10 डायग्राम कर सकते थे, मगर इधर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है. ये सब ऑनलाइन में सिस्टम. तुम लोग जूम के बारे में पता था लॉकडाउन का पहले? नहीं सर. हम नो तुम सर. पता नहीं नो था. सर.
हमको भी पता नहीं था। लॉकडाउन में क्या कर दिया हम लोग को, जूम में एडिक्टेड कर दिया। अभी जूम, गूगल मीट, कितना कुछ चल रहा है, बाप रे बाप। हम तो क्लास लेने के लिए जूम ही खरीद लिया, क्या करे, उपाय नहीं है। सर हाँ? ऑपकोड फेज में T1 से T4 तक गया लेकिन मेमोरी में T3 तक, क्यों? सर ये तो पहला दिन बताया था मैंने, किसका कितना मशीन साइकिल लगता है देखो। फर्स्ट क्लास सर, फर्स्ट क्लास मेरा एब्सेंट था। पूरा फर्स्ट क्लास? वो नहीं, पिछला दिन का, यस सर, फर्स्ट क्लास मुझे पिछला दिन तो हम बताया था शायद, जो इधर फॉर्मूला लिखाया, क्या है मशीन साइकिल, क्या है टी स्टेट, उसमें था ना बबली, तुम नहीं था? सर थे सर। तो उसमें तो मैंने लिखाया है, मेमोरी रीड के लिए 3 लगता है, मेमोरी रीड के लिए 3, ऑपकोड फेच के लिए ये तो मैंने बोला है। हाँ अच्छा हाँ वो नहीं, वहाँ पे समझे नहीं थे, वो पीछे लिखा हुआ था 25 तारीख वाला क्लास में, तो वहाँ पे हाँ। समझ में नहीं। हाँ वो उस क्लास में थे हम। ठीक, तो ऑपकोड फेच मेमोरी रीड और मेमोरी राइट में 3 स्टेट लगते हैं ना? 3 स्टेट लगता है, इसीलिए मेमोरी रीड के लिए 3। अच्छा ओके सर। एनी क्वेरीज, एनीवन? किसी सर का कोई सभी का टाइमिंग डायग्राम याद करना पड़ेगा? एकदम नहीं सर, एकदम नहीं। ये डायग्राम तुम्हारा याद हो गया ना? ऑलमोस्ट मतलब हो चार जाना पांच चाहिए चार सर, पांच कुछ ड्रॉ प्रैक्टिस करने करोगे, पर। 4-5 ड्रॉ करोगे तो हम 100% को दे रहे हैं, तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, जो तुम्हारा याद हो जाएगा, ये डायग्राम याद रहेगा। बाकी सारा का डायग्राम तुम बना पाओगे, सिर्फ तुमको जानना है इसके लिए क्या क्या मशीन साइकिल लगेगा। ये बोल पाओगे तो तुम ड्रॉ कर पाओगे, ये नहीं बोल पाओगे तो हमारा हाथ में कुछ नहीं। मेन मशीन साइकिल है सर ना। मेन मशीन साइकिल है, किसके लिए क्या मशीन साइकिल है लगेगा? ऑपकोड फेच मेमोरी रीड, तुम ड्रॉ करके आया ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी राइट, पूरा ही गलत हो जाए। माइक्रो प्रोसेसर ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये तुम बुक पढ़ के बहुत कुछ फायदा नहीं होने वाला है, हमको पता नहीं है। रेदर देन हमारा इधर अभी 20 पेजेंट है, रेदर देन 20 बाकी जो स्टूडेंट है वही किसी को हॉल मैनेज करके इधर उधर करके पास कर जाएगा, मगर सब्जेक्ट सीखना थोड़ा मुश्किल है। मतलब टीचर छोड़ के इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम लोग इस सेमिस्टर में माइक्रो प्रोसेसर तुम्हारा एनपीटीईएल में रहेगा तो ले सकते हो, कर सकते हो, एक कोर्स कर लो। हाँ सर, जनवरी से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ उसको एनरोल कर लो, उसके कर लो, आंसर हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम लोग हमको बोलना पड़ेगा एग्जाम आंसर करके, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, गलत होगा करेक्शन होगा हम बोल देंगे। सर वही दिक्कत हो जाता है ना, असाइनमेंट बहुत नहीं सॉल्व होते हैं। 100% सॉल्व होगा। माइक्रो प्रोसेसर में तुम लोग असाइनमेंट सॉल्व नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। जो हमारा क्लास कर रहे हो, जो तुम लोग कर नहीं पाओगे तो हम बोल रहे हैं हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इतना बड़ा बात बोल दिया आज। इट्स अ बिग, ऐसा कुछ चीज है ही नहीं जो हम नहीं पढ़ा रहे, हम पूरे डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं, उधर में भी उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाता है। मेमोरी इंटरफेसिंग से क्या क्वेश्चंस आएगा जो तुम लोग कर नहीं पाओगे? टाइमिंग डायग्राम से क्या क्वेश्चंस आएगा जो तुम लोग कर नहीं पाओगे? हो जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस अटक जाए
क्यों नहीं कर पा रहे हो? हमारे साथ 1 to 1 बात करो, हम कर देंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे, तुमको समझा भी देंगे क्यों उसका आंसर हो रहा है। ओके सर। तो एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा तुम लोगों को जो काफी काम में आएगा। और हमारा पेस्टिज के खातिर गोल्ड जरूर मिलाना, नहीं तो हमारा पेस्टिज कुछ भी नहीं रहेगा। गोल्ड मिलना चाहिए सबको। होगा ना? यस सर। एक ही जन का यस सर? कोशिश करेंगे। कोशिश क्या है, 100% होगा। बाकी सारा किसी को नहीं मिलेगा। उत्सव दिन भर बक बक करते रहता है, आज उत्सव पूरा पूरा स्टॉप हो गया। सर होगा सर, कोशिश रहेगा जरूर। करो ना, इसको करो ना, अच्छा लगेगा, हमारा भी यस अच्छा सर। लगेगा। यस सर। पढ़ने का एक मकसद होना चाहिए ना। यू आर माई, यू कैन से लिटिल ट्रीज। हम लोग तुमको अच्छे लगा रहे हैं, तुम एक दिन हमको फ्लावर्स दोगे, फ्रूट्स दोगे, तो वही फ्रूट्स होगा जब तुम लोगों को गोल्ड मेडल मिलेगा। चलो, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये T1 T2 T3 T4 क्यों और T1 T2 T3 क्यों? क्लियर? यस सर। यस अभी सर। क्लॉक सारा में कर दो। अच्छा, तुम लोग जो कर सकते हो इसको पूरा कॉपी करके T1 T2 T3 T4 तक कर लो, जैसे किया है ऐसा सेम, देयर इज अ नो चेंज। T4 तक जो किया उसको सेम होगा। कंप्लीट? यस सर। क्लॉक हो गया। नेक्स्ट, आयो ऑब्लिक एम्बर क्या होगा? आयो ऑब्लिक एम्बर क्या होगा बोलो? सर हाई से लो जाएगा। हाई से लो करके स्टेट T4 तक। मेमोरी रीड में क्या होगा? आयो ऑब्लिक एम्बर बोलो। टेबल तो लिखा है मैंने। मेमोरी रीड में आयो ऑब्लिक एम्बर क्या है? 0। 0। तो 0 ही था, 0 ही रहेगा, स्टेट चलता रहेगा। आयो ऑब्लिक एम्बर इज इक्वल टू 0। आयो ऑब्लिक एम्बर इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट देखो S0 S1। S0, S1 S0, S1 ठीक है। क्या है S0 S1, क्या वैल्यू है? सर 1 0। 1, पहले तो 1 है। यस सर। अभी मेमोरी रीड में क्या होगा? सर 0। एक 1 एक 0। बोलो। यस सर। यस सर 1 0। 1 0 1 0। एक स्टेट चला गया, एक को डाउन करके स्टेट कर दिया।
अभी कौन सा वन है, S1 और S0? बोलो। सर ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 0। ये S01 है। हैं? देखो ना, मेमोरी रीड S01 S01 है, है, S1 0 है, 0 है। तो S0 is equal to 1, S1 S1 equal is equal to to 0, right? Is it clear? Next, sir, A8 to A15. Higher order address bus. Here unspecified. Okay. Similarly from over here. अच्छा, एक चीज बोल देता है, इसके बाद जो नीचे वाला सिग्नल है ना, सिर्फ T1 T2 T3 का कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, हो जाएगा। सिर्फ T1 T2 T3 का कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, हो जाएगा। मतलब तुम्हारा इजी हो गया। और ओके, हायर ऑर्डर एड्रेस बस। नेक्स्ट सर, AD02 AD7। सॉरी, इसे डॉटेड होगा। इसमें तो T4 में तो कोई चेंजेस ही नहीं है। नेक्स्ट ALE, क्या होगा ALE? It's a lower order address bus. It's a lower order address bus. It's a data bus. It's a data bus. ALE क्या होगा बोलो? सर लोअर ऑर्डर एड्रेस बस में हाई होगा। हाँ, सब में, इधर में भी होगा और इधर में भी T1 में होगा। नेक्स्ट रीड बार। सेम टू सेम T1 T2 T3, जस्ट कॉपी पेस्ट किया मैंने। सब पहले कंप्लीट करो।
कंप्लीट? नो सर। Yes, sir. सर डेटा वाला जो है वो AD0 to AD7 में जो डेटा बस वाला है वो सर वो इन बिटवीन खत्म हो रहा है T3 में ना, वो बॉर्डर पर है T3 के। कौन सा? ये वाला? नहीं सर, फर्स्ट वाला, इसके T3 में पहले तो वाला। खत्म, T3 में तो खत्म, इसके पहले में भी, T3 इसका पहले में भी तो T3 में ही खत्म हुआ था। ओके सर, तो वो जो ठीक है इसके बाद डॉटेड लाइन था, इधर में भी डॉटेड ही होगा। हम गलती से T4 की जगह में T1 कर दिया था, हमारा गलती था। ये वाला नहीं होगा, डॉटेड ही होगा। तो सर वो डॉटेड ही होगा ना सर? हाँ डॉटेड ही होगा, जैसा था T4। हम तो बोला था T4 तक पूरा कॉपी मार दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर तो वो जो एरो ड्रॉ किए है डेटा से लेकर नीचे रीड बार में, हाँ तो वो थोड़ा सा सर टेढ़ा, मतलब नहीं वो वाला नहीं, इधर फर्स्ट वाला सर। हाँ। इसके जस्ट बाद वाला एरो। हमारा ड्राइंग तो सर सबसे बेकार है, ये जो बोलो तो हमारा ड्राइंग सबसे बेकार है। हम एकदम ड्राइंग कर ही नहीं पाते, मगर ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, देयर इज अ नो मिस्टेक। तुम सिर्फ एरो दिखा दो, ये सिर्फ एरो दिखा दिया। एरो दिखा दिया मतलब हमको समझा दिया जो इधर से इधर ही हमारा लो है। ओके इसका थोड़ा इधर उधर भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ऐसा तो अच्छा होता था, इसका एकदम नीचे नीचे करते थे, इसके नीचे नीचे करते थे तो अच्छा होता था, मगर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कंप्लीट? कैन आई प्रोसीड? यस सर। यस सर। बोलो। Yes, sir. तो इधर में होगा 81, इधर में होगा 00, इधर में होगा XY। क्यों? इसके लिए हो रहा है ऑपकोड फेच। अभी हमारे एक क्वेश्चन है, मेमोरी रीड किसके लिए हो रहा है? उसका एड्रेस और डेटा क्या है? बोलो। 85008 85008। हाँ डेटा XY। XY तो ये तो हो गया, और डेटा XY कैसे होगा? सर बोलो, मेमोरी रीड किस लिए आ रहा है? मेमोरी रीड किस लिए हो रहा है, पहले ये बताओ। सर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है किधर से किधर? रजिस्टर्ड मेमोरीज Sir, मेमोरी टू रजिस्टर। मेमोरी टू रजिस्टर मतलब? Yes, sir. सर 8500 to accumulator। 8500 किस लिए हो रहा है? पहले बोलो किस लिए हो रहा है? हो रहा है इसीलिए जे तुम्हारा मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट आ रहा है एक्यूमुलेटर में, मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट आ रहा है रजिस्टर में, मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट आ रहा है रजिस्टर में। इज इट क्लियर? Yes, sir. मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट रजिस्टर में कैसे आएगा? Memory read. एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन का कंटेंट मतलब कौन सा मेमोरी लोकेशन का कंटेंट आएगा? HL रजिस्टर पेयर कितने? HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस है उसी एड्रेस का कंटेंट आएगा। यस सर। Yes, sir. तो अभी तो उसका तो एड्रेस हम पकड़ भी लिया है। क्या पकड़े हैं?
8500H। तो 8500 का कंटेंट एक्यूमुलेटर में आ रहा है, इसलिए मेमोरी रीड लग रहा है। यस और नो? यस सर। यस तो सर। 8500 का जो कंटेंट है वो वही होगा डेटा। 8500 का कंटेंट वही होगा डेटा, और एड्रेस क्या होगा? 8500। तो 8500 का हायर एड्रेस होगा 85, लोअर होगा 00, और इधर लिखो कंटेंट ऑफ 85। इसका अंदर लिख पाओगे तो ठीक है, नहीं तो नीचे लिखो एरो देकर, कंटेंट ऑफ 8500H, कंटेंट ऑफ 8500H। इज इट क्लियर? सर किसके लिए हो रहा है पहले सोचना पड़ेगा। कौन सा मेमोरी लोकेशन का कंटेंट आ रहा है, कौन सा मेमोरी लोकेशन में जा रहा है। जो मेमोरी लोकेशन के साथ रिलेटेड होगा उसी मेमोरी लोकेशन को इधर पकड़ा जाएगा एड्रेस। जो डेटा इधर एक्यूमुलेटर का डेटा जा रहा है और मेमोरी लोकेशन का डेटा आ रहा है, इधर में मेमोरी लोकेशन का डेटा आ रहा है, तो कंटेंट ऑफ 8500H। ओके, हाँ? यस सर। क्लियर टू ऑल? यस सर। अनफॉर्चुनेटली आज और तीसरा डायग्राम पॉसिबल नहीं होगा, मगर जो मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, ये मशीन साइकिल ये टेबल के अनुसार, ये सब तो बोल दिया तुम लोगों को। देखो हम ये कराया आज ये कराया, राइट? तुम घर से करके लेकर आओगे। मूव M, B, तो डबल राइट दे रहे हैं हम। मूव M, B करोगे, ये हम पढ़ाया था तुम लोगों को ना, ये तुम लोगों का ही है ना? ये वाला हमारा है, पता नहीं है, इतना डिटेल में नहीं था सर शायद। क्या डिटेल्स में नहीं था सर? यस सर, मतलब इतना सारा हमारा टेबल इसमें एक बार सब लोग अपना टेबल मैच करो, मेरे समझ से इतना सारा बताए थे सर। यस सर, ये वाला है सर। मूव A, M हो गया। अच्छा, मूव B, M हो गया। A, M किया और B, M एक ही बात है। अभी तुम लोग करोगे INX B, INR M, मूव A, E, मूव M, 4D। कितना दिया? 1 2 3 4, ठीक है? और किधर गया? एक मूव M, B। हाँ, ये भी था ना? हाँ ये पूरा, हाँ सर इतना पूरा था। ए मोट 6 दिया। ST 8600, LD 8500। Is it clear? ST 8600, LD 8500। This one तो हो गया। ये INX B, INR M, MBI A, 3E, MBI M, 4D, ST 8600, LD 8500। कुछ नहीं होगा तो कम से कम स्ट्रक्चर बना के लेकर आओ। इज इट क्लियर? ओके सर। यस सर। उत्सव, यस सर। send me the details. अटेंडेंस ठीक है? Tomorrow same time? Oh no, sorry. Tomorrow maybe class will not be possible because I have a meeting on tomorrow.
no, so tomorrow classes will not be possible. So day after tomorrow will be done. I try, but I don't know if meeting is postponed, so I will be there. Otherwise, tomorrow classes will not be there. Day after tomorrow, there will be the same time, 2 o'clock. सर प्रीवियस क्लास का वो एक प्रोग्रामिंग बच गया था, हो गया क्या? कौन सा बोलो तो? तो प्रीवियस क्लास का एक क्या प्रोग्रामिंग? सर ऐड 5 नंबर स्टोर्ड फ्रॉम 8500H। तो बोलना चाहिए। सर एक प्रोग्रामिंग करवाने बोला था। हैं, बोलना चाहिए था पहले। अच्छा, नेक्स्ट दिन पहले याद दिला देना, ठीक है? हेलो। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट दिन पहले याद दिला देना, उसका प्रोग्राम से हम शुरू करेंगे। फिर जो डायग्राम दिया 6, उसमें जो जो प्रॉब्लम होगा, और हम डायग्राम नहीं कराएंगे, 6 करोगे बस हो जाएगा। तो वही 6 तुम लोग घर से करो। घर से करने से तुम्हारा 2 चीज होगा, एक तुम्हारा याद भी रह जाएगा और तुम खुद से भी कर पाओगे। प्रॉब्लम कुछ तो होगा ही, प्रॉब्लम होगा इसीलिए तो हम हैं, नहीं तो हमारा तो जरूरत ही नहीं था, है कि नहीं? यस। तो करो, फिर कोशिश करेंगे कल, बट आई डोंट नो टुमारो क्लासेस विल बी देयर और नॉट, सो आई विल बी